बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आगाज करें से Honorable Dr. Mohammad Ehsan Khan, CEO and founder of the Trade Foresight, team members of Pakistan Single Window and Trade Foresight, distinguished guests and members of this chamber, good afternoon. It gives me immense pleasure to welcome the team of the Pakistan Single Window and Trade Foresight to the Sialkot Chamber of Commerce and Industry. Indeed, the Pakistan Single Window is a revolutionary initiative aimed at transforming conventional trading methods into a modern and robust system. I am pleased to mention here that Sialkot Chamber and the team of Pakistan Single Window enjoy a cordial working relationship in our joint goal of ensuring the adoption of PSW by the export industry. Here I would also like to take this opportunity to acknowledge and appreciate the Trade Foresight management for being one of the pioneers in trade technology and striving to digitalize the global trade value chain. Ladies and gentlemen, British mathematician Clive Humbay rightly pointed out that data is the new oil. In today's modern age, data powers entire industries and holds tremendous value. For businesses involved in the international trade, it is extremely important to have a practical and efficient marketing intelligence strategy in place, and that can only be achieved through analysis of the insight about domestic and global markets and take informed decisions. I believe that no company can survive today cutthroat competition without having decent data analysis capability in its arsenal, and that is what Trade Foresight comes into play. It is the world's first data-driven trade ecosystem enabling businesses to analyze, connect, collaborate, expand and execute sustainable trade around the world with authentic data and verified data. As the representative of the largest MSC-based export cluster in Pakistan, I am pleased to learn about the collaboration of Pakistan Single Window and Trade Foresight, which I believe would have fruitful results of for the SMEs of Pakistan. I am excited about today's seminar, Boosting SME Digitalization for Trade, and look forward to getting a deeper insight into the potential of Trade Foresight and what it can offer to exporters of Sialkot. We remain thankful to the government for taking initiative like Pakistan Single Window for modernization and ease of doing business. I sincerely hope that Trade Foresight would be able to serve the same purpose. I may sum up by thanking Dr. Mohammad Ehsan Khan and the guest for PSW for visiting this chamber with the hope that today's international interaction would benefit the business community of Sialkot. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for hosting us. I think we have summarized the platform's value to the ecosystem of trade globally. The vision behind Trade Foresight, the way we started off, was that a lot of SMEs, and as you correctly mentioned, that Sialkot has the largest cluster of SMEs across Pakistan. There is a huge knowledge gap between information available to SMEs and the big players in the market. They have those tools available, they have the resources available, they have entire systems available that helps them finding the right market. The general trader
in a lot of cases, SME, the way he does business is by knowing somebody in a certain market and saying, okay, I would enter that market, or following what is being done by the leader in that particular market. So SME remains always at a disadvantage when it comes to information. And I think information is the key for any business. If I would know what might happen in a certain market or what happened and what are the alternates that are available when it comes to trade, my trade becomes much more sustainable, and that's the value that Trade Foresight carries. We have gathered data from almost 20 plus different data sources around the world, whether it is qualitative or quantitative. We have data for almost 12 million traders who you can connect with. So, and that is all driven by data. One thing that I would like to mention, and that's a thing that SMEs don't do, is they don't provide enough information on the platform itself. So a platform like Trade Foresight, we are driven by data. So the more information you provide about yourself, the more the tool will be able to connect you with the right markets, the right traders, and the right channels available for you to boost your business. Once again, thank you so much for hosting us, sir. And I hope that the collaboration between Pakistan Single Window, Trade Foresight, and Salco Chamber will create a lot of benefit for the local trade ecosystem over here. One thing that I would like to additionally mention, is that we have opened our office in Sialkot to make sure that we can serve the Sialkot traders locally, inshallah. So thank you, and I would like to hand over to Abdul Qadir to continue the session. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the distinguished guests. And we welcome you to the Trade Foresight and PSW training session. And to start off, I would hand over to Ms. Ulu Simin, who is our CPO and co-founder. And she will be presenting the Trade Foresight portal and mobile application to all of you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum sir. First of all, thank you so much for joining us. Before I actually start my presentation, Before I start my presentation, I really would like to show you guys some numbers. इतने सारे numbers दिखाने का जो मकसद है ना, वो ये है कि अगर आप देखें तो दुनिया भर में जो एक SME है, आप लोग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, 50% ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है दुनिया भर की वो कवर करता है एक SME. यही SME 90% पूरे दुनिया का बिजनेस रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया का. और 40% किसी भी नेशन की ग्रोथ में GDP की कंट्रीब्यूशन जो आती है वो SME से आती है. यानी कि SME की कंट्रीब्यूशन बहुत ह्यूज है इकोनॉमी में. और ये क्यों मैं बता रही हूँ आपको, वो इसलिए क्योंकि आप हैं SME और आप इम्पोर्टेंट हैं. लेकिन हम ये देखते हैं कि इतनी सारी, बिकॉज ऑल्दो आप इतना सारा इनपुट डाल रहे हैं किसी भी कंट्री की GDP ग्रोथ के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आप ये देख लेंगे, चाहे आपके फाइनेस्ट आप सर्जिकल इक्विपमेंट बना के जा रहे हो, इट डजंट रियली मैटर, आपके पास हाईएस्ट क्वालिटी स्पोर्ट्स गुड है. अगेन लेदर, यहाँ का लेदर इज वन ऑफ द टॉप. लेकिन इसके बावजूद हमारा ट्रेडर क्या सोचता है, कहाँ ट्रेड करूँ, कैसे ट्रेड करूँ, कहाँ से मुझे बेहतर आउटपुट मिल सकता है, ये हमारे ट्रेडर का सवाल है कंटिन्यूस. हर ट्रेडर, चाहे कोई भी ट्रेडर है, उसका नीड भी है और उसका पोटेंशियल भी है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने का. लेकिन आप में और एक बड़ी लार्ज एंटरप्राइज जिनको हम कहते हैं, उनमें फ़र्क क्या है? वो सिर्फ ये फ़र्क है कि उन, जैसा सर ने भी कहा और डॉक्टर एस ने भी कहा, कि उनके पास एक्सेस है डेटा का और वो इस डेटा को, इस ट्रेड डेटा को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं. Your business has the potential to enter new international markets because you have an excellent product that you want to export to different countries.
Or you found a product that has potential in your market and you want to import it. However, every time you try to do business internationally, you realize that you cannot do it with ease, as you lack information that is required to do business in your potential market, such as trade regulations and product information. Trade laws and data changes regularly, and there are times when you are in a situation where your export or import gets held at customs due to recent changes in trade agreements. There are also scenarios where a new trade agreement results in access to new markets, where your niche product can be exported, or a product from that market can be imported to your country. Traders take decisions based on what the key market players are trading, or based on bits and pieces of information. The picture is never complete. Efficient decision making is the key for trade. लेकिन वो efficient decision making कब आएगी? जब आपके पास knowledge होगी, आपके पास data होगा, और trade foresight provides you that. So as I was saying कि किसी भी SME या MSME में और एक लार्ज एंटरप्राइज के अंदर जो हम फ़र्क देखते हैं, वो फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये जो इतना सारा डेटा है WTO से आया हुआ, WTI से आया हुआ, दे हैव दैट एक्सेस, उनके पास इस डेटा का सारा एक्सेस है, और उसके बाद दे कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दोस एक्सेस. वो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर उनकी सर्जिकल गुड एक मार्केट के अंदर बैन हो गई है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की सर्जिकल गुड आपको पता चला कि जी US में बैन हो गई किसी वजह से. सो नाउ व्हाट टू डू? अब आप पैनिक के अंदर आ गए, यू डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू ट्रेड. आप ट्रेडिंग किस बेसिस के ऊपर करते हैं? आप करते हैं इस बेसिस के ऊपर कि जी मुझे पता चला था कि फलाना बंदा जो है ना दुबई में ट्रेड कर रहा है और उसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, सो वाई नॉट, मैं भी वहीं पे ट्राई करता हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट की वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो. तो हम जो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं वो है डेटा, और फिर उस डेटा की बेसिस के ऊपर हमने डिफरेंट टूल्स क्रिएट किए हुए जो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं. सो एट द एंड जो मैं अपनी प्रेजेंटेशन या डेमो स्टार्ट करने से पहले जिस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना चाह रही हूँ वो ये कि एक SME इम्पॉर्टेंट है किसी भी नेशन की ग्रोथ के लिए, लेकिन SME के लिए इम्पॉर्टेंट है ट्रेड डेटा, और उसको समझना और उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है आज हमारे ट्रेडर के लिए. अब आई वुड लाइक यू टू इमेजिन कि एक ट्रेडर है सियालकोट में बैठा हुआ और उसके मोबाइल के ऊपर ही इज़ गेटिंग इंफॉर्मेशन, चेंजेस हुई हैं ट्रेड लॉ के अंदर US के अंदर, एंड ही इज़ गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन ऑन हिज मोबाइल फ़ोन देन एंड देयर, जिस वक्त रियल टाइम इंफॉर्मेशन में हो रही है. लेदर गुड की प्रोडक्शन चाइना में हो रही है, वहाँ पे कोई इश्यूज आए हैं, आपको पता चल गया, क्या पता आपके लिए एक्सपोर्ट की मार्केट खुल गई है. सो यू आर गेटिंग दैट रियल टाइम इंफॉर्मेशन. नाइकी ने अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी है और मे बी चाइना में प्रोडक्शन की मार्केट कम कर दी है, क्या आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है? अभी ट्रेड बैन लगा था कोविड के दौरान इंडिया पे टोमेटोज का, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई थी. लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि हम एक छोटी सी विंडो के अंदर देख रहे होते हैं कि बस एक बंदा मिल गया, उसके साथ वी आर कनेक्टेड एंड बस हमारा काम सही चल रहा है तो सही है. उससे ज़्यादा एक्सेलेंस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. उस एक्सेलेंस की तरफ जाने के लिए यू नीड दैट ट्रेड डेटा. सो बेसिकली ट्रेड फोरसाइट क्या है? ट्रेड फोरसाइट एक एज सर ने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया था, इट्स अ होल इकोसिस्टम. ट्रेड इकोसिस्टम इस हिसाब से है कि वी आर प्रोवाइडिंग यू डेटा रिलेटेड टू ट्रेड एनालिटिक्स. आप उस डेटा की बेसिस के ऊपर अपने लिए बेहतरीन मार्केट सर्च कर सकते हैं, आप ट्रेडर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. देयर इज़ अ होल बिग ग्लोबल ट्रेड डायरेक्टरी अवेलेबल ऑन द पोर्टल, और उसके साथ साथ हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर फिर आप अपने लिए राइट बायर या राइट सेलर ढूंढ सकते हैं वहीं मार्केट के अंदर. बेसिकली ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. फिर वी हैव पार्टनर्ड विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती हैं पूरे के पूरे आपके ट्रेड प्रोसेस के अंदर. जैसे आई मेंशन अर्लियर, आई गो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के साथ साथ, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे वेब पोर्टल की. वेब पोर्टल एक लाइव पोर्टल अवेलेबल है. आई लाइक टू शो यू दैट.
So let me know if everybody can see that. Maybe screen shared है? Yeah? Okay, so as you can see, this is our trade portal. We have divided it into 3 parts. इसमें 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है. एक हमारा ट्रेड एनालिटिक्स का पार्ट है, ठीक है. एक ट्रेडर्स का लाउंज है. ट्रेडर्स लाउंज जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, बेसिकली इट्स अ लाउंज जहां पर आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे और काम कर सकते हैं, ठीक है. और जो है ना, ट्रेड फैसिलिटेशन का एक पार्ट है जो कि, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती जाऊंगी. ट्रेडर्स लाउंज के अंदर फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ अंदर, तो फेसबुक हम में से हर बंदा इस्तेमाल करता है, ठीक है. हमने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है सिर्फ ट्रेडर्स के लिए. ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली, यहाँ पे किसी ने पोस्ट भी किया है अभी, ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली बना ही आप लोगों के लिए है, बना ही ट्रेडर्स के लिए, ताकि ट्रेडर यहाँ पे बात करे स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ ट्रेड रिलेटेड, अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक, कोई ट्रेनिंग हो रही है उसके मुतालिक, किसी की कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उस पर शेयर करें. तो ये पूरा का पूरा एक पोर्टल हमारे पास, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसके ऊपर आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. इसी पोर्टल के अंदर, इसी ट्रेडर्स लाउंज के अंदर हमारे पास मार्केट सर्च का एक बहुत अच्छा टूल मौजूद है, और मैं इस टूल के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहूँगी, यानी बहुत चाहूँगी कि आप लोग बहुत गौर से इस टूल को देखें, क्योंकि इस टूल की मदद से आप अपनी अगर आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि सियालकोट में माशाल्लाह एसएमईज के पास है, तो आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से बेहतरीन मार्केट तलाश कर सकते हैं. और ना सिर्फ वो मार्केट तलाश करेंगे जो एग्जिस्टिंग है, बल्कि उसके साथ साथ आप उस ट्रेडर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं. सो लेट मी शो यू दैट. मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे हमने कहा, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम सर्चिंग फॉर कंट्रीज टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. 4203 to export gloves. Show me the existing market and guide me. ये बेसिकली आपको गाइड करने के लिए. ठीक है. अब इसने, जैसे मैंने कहा गाइड मी, फिर आपको सारे वो कंट्रीज दिखा दिए कि जहां पर आपकी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. और ना सिर्फ ये कंट्री दिखाएं, बल्कि साथ साथ उनकी क्या ग्लोबल रैंकिंग है, क्या वैल्यू है, कितने पैसों में, क्या उसकी क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखा दी है. अच्छा, ये तो सारे वो कंट्रीज हैं जो कि एग्जिस्टिंग अभी मार्केट है. एग्जिस्टिंग मार्केट का मतलब ये कि यहाँ पाकिस्तान अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है. अब मैं कहती हूँ कि नहीं, एग्जिस्टिंग तो ठीक है, लेकिन मुझको पोटेंशियल मार्केट भी दिखाओ. पोटेंशियल मार्केट वो है कि जहां पर आपकी ये प्रोडक्ट अभी इंपोर्ट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में से कोई भी नहीं कर रहा, और वो मार्केट भी आपके सामने खुल कर है. जैसे क्यूबा में कोई नहीं कर रहा है, डोमिनिक रिपब्लिक में भी नहीं कर रहा पाकिस्तान, लेकिन दुनिया भर से हो रहा है. ये एक बहुत बड़ी पूरी मार्केट है जहां हमने टैप किया ही नहीं है. और यहां पर आपको समझ में आएगा कि डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों है. इसी डेटा, वो जो ट्रेड डेटा हमने उठाया, उस ट्रेड डेटा की बेसिस के ऊपर हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली, और उससे हमें पता चला है कि ये मार्केट्स भी हैं हमारे लिए. अब मार्केट पता चल गई, अब क्या करें? मार्केट पता चलने के बाद सेकंड स्टेप ये है कि आप कनेक्ट हो जाइए ट्रेडर के साथ, ठीक है. हमारी ग्लोबल ट्रेड डायरेक्टरी के अंदर सारे ट्रेडर्स उस मार्केट के, उसके अलावा दुनिया भर के भी मौजूद हैं यहाँ पर. सही है. ये देखिए 31,812 सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की भी बात हो रही है, ठीक है. ये हमारे पास उन सारे ट्रेडर्स की इंफॉर्मेशन आ गई है. और अब आप अगर बोल दो कि मुझे उसकी डिटेल्स दिखा दें, तो वो आपको डिटेल्स भी दिखा देगा. उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्या उसकी लोकेशन है, किन चीज़ों में वो कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन. अच्छा, इस इंफॉर्मेशन के अंदर और आप कहीं और चले जाओ, जाके सर्च करके आ जाएं, उसमें क्या फ़र्क है? इस ट्रेडर के ऊपर क्यों आपका यकीन बढ़ेगा? वो इस तरह से बढ़ेगा कि हम पर्सनली ट्रेड4साइट पे ये समझते हैं कि अकेला बंदा कुछ भी काम नहीं कर सकता.
पार्टनरशिप्स के थ्रू जो है आपको बेहतरीन प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं और बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हमने डीएनबी के साथ पार्टनरशिप की है। डीएनबी डन एंड ब्रैडसन दुनिया का माना हुआ इदारा है जो कि ट्रेडर्स को, एसएमईज को वेंड करता है और देखता है कि वाकई ये ग्लोबल एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग के लिए या ग्लोबल ट्रेड के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो हमने उनके साथ पार्टनरशिप की है और उनसे जब हमारे पास जितना भी ट्रेडर्स का डेटा है वो उनके पास जाता है, वो उसको वेंड करते हैं। तो आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है ये डीएनबी सर्टिफाइड है, यानी डीएनबी ने अपनी मुहर ये लगा दी है कि हाँ भाई ये ट्रेडर सही है, इसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये ऐसे ही इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप बस रैंडमली गए और किसी की इंफॉर्मेशन उठा ली और उससे कनेक्ट हो रहे हैं। अब आपको पता नहीं है कि आगे बंदा जो है वो आपको धोखा देगा कि क्या करेगा। तो हमने इसी वजह से ये पार्टनरशिप की है ताकि आपके पास ये सही इंफॉर्मेशन आ सके। अच्छा, ये उसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छा और टूल है। ये अभी सिर्फ मैं ट्रेडर्स लाउंज के अंदर हूँ। जब सर ने बात की ना कि इकोसिस्टम है पूरा, तो उसमें बहुत सारी चीजें, इसमें से एक चीज है ये, तो उसमें भी एक पार्ट अभी हमने मार्केट सर्च के ऊपर बात किया। एक है हमारा ट्रेडर मैच एंड मीट। डॉक्टर ऐसे ने शुरू में कहा था कि हम क्योंकि डेटा के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास अभी लोग बल्कि सियालकोट से भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो हमारे पास ऑन बोर्ड हैं, तो हम उनको भी ये बात कहते हैं कि जब आप क्या कहते हैं पोर्टल के ऊपर लॉग इन हो तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन जिस भी चीज के अंदर आप इंटरेस्टेड है वो डालें। वो क्यों डालें? क्योंकि जैसे ही आप ये इंफॉर्मेशन डालते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, मैं एक्सपोर्टिंग करता हूँ, मैं क्या कहते हैं इन कंट्रीज में, इन रीजन के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो हमारा ट्रेडर मैच एंड मीट का जो टूल है वो सारी उस इंफॉर्मेशन को लेकर और आपके लिए जो बेहतरीन ट्रेडर है उसकी पूरी लिस्टिंग दिखा देता है, कितने किन एचएस कोड्स में डील कर रहा है और उनके जो टॉप 10 ट्रेडर्स हैं वो सब दिखा देता है। और अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड में जाऊं और अगर जाके ना इसको चेंज करना चाहूँ तो वो स्पेसिफिक टू द कंट्री भी दिखाना शुरू हो जाता है। तो हमने अलग अलग तरह के टूल्स इस पोर्टल के अंदर निकाल के रखे हुए हैं जिनका मकसद बेसिकली ये है कि आपको फैसिलिटेट किया जाए। फिर मैं वापस जाती हूँ इस ट्रेडर्स लाउंज के बाद। अब आपको ट्रेडर भी मिल गया है, आप उस ट्रेडर ग्लोबल डायरेक्टरी के पास जाके ट्रेडर के साथ कनेक्ट भी हो गए। ठीक है, आपने उससे बातचीत स्टार्ट कर दी है। अब हमारा फैसिलिटेशन का पार्ट शुरू होता है। ट्रेड फैसिलिटेशन के अंदर हमने और ज्यादा इंफॉर्मेशन रखी है आपके लिए। वो क्या क्या? ट्रेड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन रखी है और हमारे पार्टनर्स के थ्रू वी कैन हेल्प यू आउट विद ट्रेड फाइनेंसिंग एज वेल। हमने ट्रेड अथॉरिटीज एंड एसोसिएशन की पूरी इंफॉर्मेशन रखी है। तो आप किसी भी कंट्री का यहाँ पे नाम डालिए और उसके जितनी भी अथॉरिटीज और एसोसिएशंस हैं उससे रिलेटेड वो यहाँ पर आ जाएंगी। उनकी ईमेल एड्रेसेस, उनका नंबर, कोई ना कोई चीज जिससे आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज है जिसको हम कहते हैं ट्रेड प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब जब आप बंदे के साथ किसी से कनेक्ट हो गए हैं, आपने मार्केट अपनी ढूंढ ली है मार्केट सर्च के टूल्स के साथ, वहां से आपको कोई अपना रिलायबल काउंटर पार्ट भी मिल गया, आपने उनके साथ भी कनेक्शन कर लिया है। अब उस जगह पे ट्रेडिंग करने के लिए आपको किसी प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। उन प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन हमने अपने ट्रेड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट के पेज पे रखी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने पार्टनरशिप की बेसिस पे चलते हैं, तो पार्टनरशिप हमने पीएसडब्ल्यू के साथ भी की हुई है और अब हमारा ट्रेडर आके यहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जा सकता है। आई कैन कंटिन्यू? या ओके। सो आप अपने बस प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, प्रोडक्ट का एचएस कोड डालेंगे या इंडस्ट्री डालेंगे। थैंक यू। मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया। हाँ, ओके। आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की एंड नाउ आपके पास सारे क्या क्या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन से कमर्शियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन सी लॉजिस्टिक के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फिर मजीद हम इसके अंदर
डॉक्यूमेंट्स ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, क्या ट्रेड अग्रीमेंट्स है, एवरीथिंग इज ओवर हियर। और उसके साथ साथ आप पीएसडब्ल्यू के साथ, अगर आप पाकिस्तानी ट्रेडर हैं तो आप पीएसडब्ल्यू के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होकर भी आ जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम आपका सिर्फ, अभी मैं फिलहाल पोर्टल की बात कर रही हूँ, लेकिन उस पोर्टल के अंदर भी हम आपको बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एंड तक, इट डज नॉट मैटर कि आप सीजनल ट्रेडर हैं, सीजनल क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्टर हैं, या फिर आप नया नया अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेड, अगर आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के अंदर आ रहे हैं, ट्रेड फॉर साइट इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू, जो कि आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड हेल्प आउट कर सकता है। अच्छा, आई गो बैक टू माई प्रेजेंटेशन। नहीं, वर्ल्ड ट्रेड वॉच नहीं था, सॉरी। ये ट्रेड फैसिलिटेशन के अंदर फाइनली मेरा और था, ये वर्ल्ड ट्रेड वॉच है। बेसिकली ये आपको दुनिया भर में कहाँ कहाँ पे कोई सैंक्शंस हैं, कोई लिबरेशंस हैं, कोई पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं, उस सब की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके ऊपर मिल जाएगी। कोई इंटरवेंशंस नए आए हैं, और हमारे ऐप के थ्रू भी आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ये पोर्टल के ऊपर भी ये सब इंफॉर्मेशन आ रही है, हर कंट्री के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन के अंदर आपकी मौजूद है। कौन सी प्रोडक्ट अफेक्ट हो रही है, सो इफ यू आर डीलिंग विद, अगर आप उस प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई सैंक्शंस किस कंट्री के अंदर लगे हुए हैं। भाई मुझे वहां नहीं जाना है, अच्छा मुझे वहां लिबरलाइजेशन है तो मुझे दूसरे कंट्री के अंदर जाना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी सही डिसीजन लेने के लिए भी और ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना जी। एनालिटिक्स भी दिखा दूं? अच्छा जो थर्ड पार्ट है जो मैं भी स्किप करके जा रही थी, लेकिन चले दिखा देती हूँ। ट्रेड एनालिटिक्स का हमारा पार्ट है, जिसके अंदर हमने सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, एक्सपोर्ट एनालिसिस, इंपोर्ट एनालिसिस, किसी कंट्री की कंट्री स्पेसिफिक एनालिसिस, और ये कि उस कंट्री के अंदर क्या एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस कंट्री का, नहीं है, क्या उसके कौन से टॉप 10 एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं, कौन से टॉप 10 इंपोर्टिंग पार्टनर्स हैं, कौन सी टॉप 10 इंडस्ट्रीज हैं ट्रेड की, कौन सी प्रोडक्ट है जिनके अंदर एक्सपोर्ट है, टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन। और उसकी कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है, कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब ये कि उनका, आपको उस कंट्री में अगर आप जाएंगे तो आपको कौन सा कंपटीशन मिलेगा, आप वो भी सर्च कर सकते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। फिर मैंने जैसे स्टार्ट में हम बता रहे थे कि एक्सपोर्ट एनालिसिस का भी है। एक्सपोर्ट एनालिसिस में अब दुनिया भर से, जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट एनालिसिस में आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने कितनी प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट की हैं, ठीक है, और पाकिस्तान का क्या मुनाफा हुआ है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के साथ वही प्रोडक्ट दुनिया भर से और जगहों से कितनी एक्सपोर्ट हुई है, और पूरी दुनिया में 6.9 ट्रिलियन का मुनाफा हुआ है। तो अभी जो है वो पाकिस्तान को कितना लॉन्ग वे जाना है और हम और कितना आगे बढ़ सकते हैं इसके ऊपर। सिमिलर इंपोर्ट एनालिसिस के अंदर इंपोर्ट रिलेटेड वही उसी तरह की इंफॉर्मेशन है, बट इट्स इंपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, फिर हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट एनालिसिस भी है। सो अगर मैं यहाँ से कोई एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेलेक्ट करती हूँ, और उसकी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी पूरा एनालिसिस मौजूद है। इस एनालिसिस की ट्रेडर को क्या जरूरत है, यही वो चीज है जो आपके पास अभी तक नहीं थी और एक बड़ी इंटरप्राइज के पास है। इस चीज की आपको जरूरत है, यू हैव टू लर्न दिस। अगर हम में से हम लोग अक्सर औकात होता है कि हम कहते हैं कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, भाई मेरा कनेक्शन हो गया है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट दैट्स मोर देन इनफ। मुझे इसकी क्या जरूरत है, इस सारी इंफॉर्मेशन में पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे ये नई चीज सीखने की क्या जरूरत है। ये इस नई चीज सीखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप अभी जो काम कर रहे हैं दैट इज गुड, लेकिन अगर आपको अपने इस काम को एक्सीलेंट बनाना है तो यू नीड दिस इंफॉर्मेशन। आपको मार्केट की, प्रोडक्ट की एक्चुअल इंफॉर्मेशन पता चलेगी, उससे आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतरीन बना सकेंगे, आप अपने एक्सपोर्ट को बेहतरीन बना सकेंगे, ठीक है। फिर
ये तो एनालिसिस वाला बात हो गया। अब आई एम गोइंग बैक कि हम मजीद और क्या सर्विसेज हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, पोर्टल के अंदर क्या बेनिफिट है, आप यू कैन फाइंड द मार्केट। एक क्लिक के अंदर आपको मार्केट मिल रही है, आपने एक क्लिक किया, आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ट्रेड एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन मिल रही है, पॉलिसीज प्रोसीजर की इंफॉर्मेशन मिल रही है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी मिल रही है आपको। मतलब बेसिकली एक क्लिक के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूशन हो रही है। इसके साथ साथ जो हमारे पास जितने भी हमारे ट्रेड फॉर साइट के मेंबर्स हैं, उनको और क्या बेनिफिट है, उनको एक बेनिफिट और है, वो ये कि ग्लोबल ट्रेड विलेज का एक्सेस मिलता है उनको। ग्लोबल ट्रेड विलेज वो है कि जहां आप अपनी कंपनी का प्रॉपर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको ग्लोबल ट्रेड विलेज के ऊपर लेके जाऊंगी ताकि आप देख सकें बेहतर तरीके से। ये ग्लोबल ट्रेड विलेज है, ठीक है। यहाँ पे पूरी दुनिया भर के ट्रेडर्स मौजूद हैं और ये सारे दुनिया भर के ट्रेडर्स से मैं जाती हूँ। अभी मैं पाकिस्तान में आपको थोड़ा दिखाती हूँ। पाकिस्तान के वो ट्रेडर्स हर इंडस्ट्री वाइज डिवाइड होते हैं। सो यहाँ ये 10 इंडस्ट्रीज हैं, ये 10 और इंडस्ट्रीज हैं और ये और इंडस्ट्रीज हैं। सो ये इंडस्ट्री वाइज सारे ट्रेडर्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। अभी एज अ सैंपल मैं आपको सिर्फ उन 3 ट्रेडर्स के बारे में दिखाऊंगी ताकि ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रेड सिर्फ आपको दिखाने के लिए एज अ सैंपल, ये एक ट्रेडर की अपनी शॉप है। सो यू कैन बिल्ड, आप अपनी वो शॉप वहां पे ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, आपकी प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले पूरा, तो आप अपनी प्रोडक्ट का प्रॉपर डिस्प्ले कर सकते हैं। आप यहाँ अपने बैनर्स बना के लगा सकते हैं, तो अपनी पूरी मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। आपकी कंपनी का प्रोफाइल आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं। अगर कंपनी का प्रोफाइल नहीं करना, आप यहाँ पर कोई और अपने क्या कहते हैं बाइंग सेलिंग के लिए अपने वैल्यूज यहाँ डालना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं। आपकी पूरे कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन, आपकी कोई वेबसाइट है वो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आपसे डायरेक्ट कोई कनेक्ट करना चाहे तो वो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैसेजेस कर सकता है। इसके अलावा आप अपनी वीडियो बना के डाल सकते हैं। अगर आप कोई लाइव कॉल करना चाहें वो आप यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना जूम पे जाने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। आप जब यहाँ बस यहाँ क्लिक करेंगे, अपना एक स्केड्यूल सेट करेंगे, जो भी आपका ट्रेडर है वो डायरेक्ट आपसे यहीं पे बात करेगा। आपको इस पोर्टल से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा एक हमने और चीज ऐड की है जिसको कहते हैं 360 व्यू। वो 360 व्यू क्या करता है, आप अपनी प्रोडक्ट का 360 व्यू दिखाना चाह रहे हैं, आप अपनी फैक्ट्री का 360 व्यू में भी दिखाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो आप बस जस्ट आप एक वीडियो बनाए, सॉरी एक पैनोरामिक व्यू बनाएंगे, इसके ऊपर अपलोड करेंगे और उसका 360 व्यू मौजूद होगा। तो आप जितना ज्यादा अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं वो उसकी हर चीज को हमने अवेलेबल रखा है, ठीक है। ओके, अब तो पहली चीज थी आपने ट्रेड फॉर साइट का पोर्टल, फिर उसके अलावा ये था कि आपको ग्लोबल ट्रेड विलेज का एक्सेस। अच्छा, ग्लोबल ट्रेड विलेज के एक्सेस के साथ साथ अब ट्रेडर्स लाउंज मैंने आपको वैसे अभी पोर्टल के ऊपर दिखाया है, लेकिन ट्रेडर्स लाउंज हमारी एक मोबाइल की ऐप है और अभी कुछ आप लोगों के, आई थिंक बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल भी है ट्रेडर्स लाउंज। मैं चाहूंगी कि मैं वो भी साथ साथ आपको दिखाती रहूं। ओके, सो ये ट्रेडर्स लाउंज की ऐप है। अभी जो आपने पोर्टल पे देखा था उसी तरह की चीजें हैं, लेकिन अभी आपके मोबाइल फोन के ऊपर मौजूद है। इसमें मार्केट प्लेस एक है जिसके अंदर ये देखिए लोगों ने अपनी प्रोडक्ट डाली है, चाहे आप प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं या किसी, तो अगर आपको अपनी कोई प्रोडक्ट डालनी है, आप सिर्फ ये क्लिक करेंगे स्टार्ट ट्रेडिंग के ऊपर, इस फॉर्म को फिल करेंगे और अपनी प्रोडक्ट डाल देंगे, आपकी प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगी। कोई बंदा इंटरेस्टेड है वो बाय नाउ पे क्लिक करके आपके इसके ऊपर एक ऑफर दे सकता है। डॉक्टर ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, हमारे इंजन में कैपेबिलिटी के जब प्रोडक्ट डालते हैं और आपका डेटा डाला हुआ है तो इंजन खुद आपके लिए ढूंढ के बायर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो इससे वैसे नहीं कि आपने मार्केट प्लेस में डाल दिया और इंतजार करेंगे लोग आए, लोग आने का हम वेट नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि जो डेटा अवेलेबल है ना वो तमाम लोगों तक डेटा आपका पहुंच जाए। तो ऑटोमेटिक जो मार्केटिंग आप करना चाहते हैं वो पुश नोटिफिकेशन थ्रू हम लोग करते हैं हमारे काम जी।
अच्छा, अब जैसे कि ये बात, इनकी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी कि जैसे अब अगर किसी बंदे ने यहाँ पे पहली इनकी प्रोडक्ट डली हुई है कि ये फर्नीचर आइटम्स के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो अब पोर्टल के अंदर जितने भी लोग फर्नीचर आइटम में इंटरेस्टेड होंगे, जैसे ही इन्होंने अपनी पोस्ट डाली है, ये पोस्ट सबके पास एक मैसेज चला जाएगा और नोटिफिकेशन चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक और चीज है। फिर हमारी ग्लोबल ट्रेड डायरेक्टरी, आपने ग्लोबल ट्रेड डायरेक्टरी उसके ऊपर भी देखी थी पोर्टल पे। इसके अंदर एक और बात है, वो ये कि आप नियर बाय जो ट्रेडर्स है ना, जैसे आप यहाँ से आप कहीं गए हैं और आप सिर्फ ये वाला बटन हमारा ऑन कर देते हैं कि ओपन नियर बाय ट्रेडर्स, तो जितने आपके इर्द गिर्द ट्रेडर्स है ना, उन सारों की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि ये ट्रेडर यहाँ पर है, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं कि एक सुपरफिशियल सी इंफॉर्मेशन है, उसका एक्चुअल एड्रेस मौजूद है वहां पर, तो आप यू कैन जस्ट गो और आपको पता चलेगा अच्छा जी ये ट्रेडर मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मार्केट सर्च का जी, आप लोग अक्सर ट्रेडर्स यहाँ से एग्जीबिशन में ट्रैवल करके जा रहे होते हैं कंट्रीज के अंदर, तो जब आप मौजूद हैं आपके पास एक तो एग्जीबिशन में जो लोग मौजूद हैं सब कनेक्ट कर रहे होते हैं। अगर मैं इसमें सिर्फ एक क्लिक करूँ जो मैंने भी कहा है यहाँ पर, तो वो मुझे लाकर दिखा रहा है कि मेरे जहां मैं मौजूद हूँ मेरे के कितने ट्रेडर्स मौजूद हैं और उससे मैं कनेक्टिविटी कर सकता हूँ वहां से बैठे बैठे। सो आई कैन ऑल्सो फिल्टर दैट, आई कैन से ओके यार 30 किलोमीटर रेडियस में जितने भी ट्रेडर्स आ रहे हैं ना वो आप मुझे दिखा दें सारे। तो टूल के पास हमारे पास क्योंकि डेटा मौजूद है, वी कैन टेल यू हु आर नियर बाय यू। हम लोग घूमने जाते हैं अक्सर जगह फैमिलीज के साथ बहुत जगह के ऊपर, और बिजनेसमैन का मैंने देखा है कि हम लोग जहाँ जाते हैं हम काम ही कर रहे होते कुछ ना कुछ करके, तो वी कैन लीव अ फैमिली एंड देन रोम अराउंड एंड फाइंड दीस ट्रेडर्स हु आर अराउंड मी। एक क्लिक किया, इसकी डिटेल्स आई मेरे पास, ये मैंने क्लिक किया, ये पूरा मैप पे दिखा रहा है कि मैं किस तरह तक पहुंचना है मुझे तक। So making the life very easy for traders in the sense क्योंकि कनेक्टिविटी हम आसान करते चले जा रहे हैं, और दिस इज ओनली बिकॉज इस ट्रेडर ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अगर आप ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो यू विल बिकम विजिबल टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड। कोई सियालकोट अगर आता है और वो आगे क्लिक दबाते मैं इन लोगों से मिलना चाहता हूं, तो एक क्लिक के ऊपर वो आप सबसे कनेक्ट कर सकता है। सो दैट्स द ब्यूटी दैट वी ट्राइंग टू क्रिएट विद इन द टूल। और ये सब देखें, अगर आप देखें तो दीज आर ऑल सिंपल टूल्स। गूगल मैप हर बंदा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, लेकिन कभी हमने उसको इस तरह इस्तेमाल नहीं करा कि मैं इन्फॉर्मेशन दूं जिससे मैं ट्रेडर से कनेक्ट कर सकूं। सो ऑल दिस कैपेबिलिटीज वी आर प्रोवाइडिंग विद इन एक सिंगल टूल के अंदर हम सारी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करें जो कि आपके लिए यूजफुल बन सकती है। अच्छा जी, फिर सिमिलरली इसी तरीके से जो आपने मार्केट सर्च का टूल वहां देखा था, वो उसका एक्सेस भी हमने ट्रेडर्स लाउंज के ऊपर इधर आपके मोबाइल फोन में दिया हुआ है, क्योंकि अक्सर औकात मोबाइल तो हर एक के हाथ में हर वक्त होता है ना। तो इफ यू हैव दैट थिंग, तो आप वहीं के वहीं लोगों को ढूंढ भी सकते हैं, अपने लिए राइट मार्केट भी ढूंढ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए अथॉरिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉजिस्टिक की वैल्यूज, एवरीथिंग इज देयर। फिर अपडेटेड ट्रेड न्यूज आती रहती है, ये वही ट्रेड न्यूज है कि जिससे आपको ये पता चल सके कि कहाँ पे कोई सैंक्शंस लग रहे हैं, कोई लिबरेशन है, कोई चीज ऐसी है कि जो आपकी मार्केट के लिए, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अफेक्ट कर रही है, तो ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली आपके पास आती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मेरे पास भी अभी बार बार ना मैसेजेस आते रहते हैं कि ये नया ट्रेडर अभी ऑन बोर्ड आया है, या दिस इज समथिंग दैट यू माइट नीड, आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है, किसी ने ये नई पोस्ट डाली है, तो मैं जिन प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ उस पोस्ट के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास कंटिन्यूअस आने लग जाती है, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, आपको इंक्वायरी भेजना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो यू कैन डू फ्रॉम द पोर्टल। जो लोग अपनी प्रोडक्ट पोस्ट करते जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन मेन जगह के ऊपर भी अवेलेबल है। अभी देखिए हमारे पास लोगों ने पोस्ट भी डालना शुरू कर दिए कि दे आर इंटरेस्टेड, दे आर टॉकिंग, सो यू कैन गो एंड कम्युनिकेट। सही जी। अच्छा, ये तो हम अभी तक ट्रेडर्स लाउंज पे थे। नाउ इसी ट्रेडर लाउंज को हमने क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए, सियालकोट में रहने वालों के लिए, जैसे अभी डॉक्टर एस ने बताया था कि एक पर्सनल, एक फिजिकल स्पेस भी बनाई हुई है, दैट इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द ट्रेडर्स, जहां पर आप जा सकते हैं, यू कैन मीट अदर ट्रेडर्स, वहां पर आप B2B मीटिंग्स कर सकते हैं, हमारे पास मीटिंग रूम है,
आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई मौजूद है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ीज़ मौजूद है, वर्चुअल मीटअप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ हमारे जो है एक्सपर्ट मौजूद है जो आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको पोर्टल यूज़ करने के लिए, टूल यूज़ करने के लिए, ताकि आप बेहतरीन कनेक्शन निकाल सकें और आप जो काम करें आप किसी पे हमेशा के लिए डिपेंडेंट ना रहें। अभी भी अक्सर औकात ये होता है कि हम एक काम शुरू करते हैं, हम कहते हैं कि वी आर इन आर दिस कंफर्ट जोन और मेरा ये काम जो है ना कोई दूसरा बंदा बस करके देते हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट कि टूल आपके पास मौजूद है, डेटा आपके पास मौजूद है, हर काम आप खुद कर सकते हैं और आप अपने आप को ग्रो करें। सो दिस इज द वेरी गुड प्लेस, गो देयर, मीट न्यू पीपल, उन लोगों के साथ मिलिए, बैठिए, ताकि आप लोगों को भी हेल्प आउट हो सके। ठीक है, ये एक हमारा इन पर्सन ट्रेडर्स लाउंज या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मौजूद है फॉर द पीपल ऑफ सियालकोट। अच्छा, इसके अलावा आपने पोर्टल देख लिया हमारा, पोर्टल के साथ साथ हमने आपने मोबाइल ऐप ट्रेडर्स लाउंज भी देखी है। अभी मैंने आपको हमारे ग्लोबल ट्रेड विलेज के बारे में बताया। उसके अलावा हम जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये कि हमारे पास एक की अकाउंट मैनेजर की सर्विस है। वो की अकाउंट मैनेजर क्या करता है, ही बेसिकली प्रिपेयर आवर ट्रेडर फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। आपको हेल्प आउट करने के लिए कैसे आपको बिजनेस सेटअप करना है, आपको पोर्टल को यूटिलाइज कैसे करना है, किस तरीके से राइट इन्फॉर्मेशन को ढूंढना है, कैसे सही ट्रेडर के साथ कनेक्ट होना है, ये सारी की सारी चीजें हमारा की अकाउंट मैनेजर आपको प्रोवाइड करेगा। फिर अक्सर औकात आपके पास बहुत अच्छी सर्विसेज, अच्छी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन वो अच्छी प्रोडक्ट जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए रेडी नहीं होती। तो हम ये सर्विसेज भी साथ साथ प्रोवाइड करते हैं। आपकी ब्रांडिंग करना, आपकी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट के लिए मेकअप करना कि ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेहतरीन लगे और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक, फिर आपको ट्रेड कोचिंग प्रोवाइड करना, हमने अपने पार्टनर्स के थ्रू ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिसके अंदर फाइनेंसिंग ऑफ रॉ मटेरियल आ रहा है, या इनवॉइसिंग है आपकी किसी प्रोडक्ट की कुछ, या लॉजिस्टिक के आपके इंस्पेक्शन आ रहे हैं, लॉजिस्टिक की इंफॉर्मेशन है, ये सारी वो सर्विसेज हैं वो जो हम आपको साथ साथ प्रोवाइड करते जाते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट वन थिंग कि हम खाली ये कह दें कि जी ये रहा पोर्टल, ये इस्तेमाल कीजिए, हम आपको नहीं जानते। हमारा मकसद ये है कि आप एज ए ट्रेडर, एज एन एसएमई डिजिटलाइज हों, आप ग्रो हों, लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू होल्ड योर हैंड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड। दिस इज व्हाट वी वांट। हमारी वैसे तो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन आपके दरमियान भी बहुत ट्रेडर्स ऐसे मौजूद होंगे जिनमें हमने जो सियालकोट के ट्रेडर्स हैं जो बॉक्सिंग ग्लव्स के अंदर और वर्किंग ग्लव में और लेदर गुड्स के अंदर दे वर वर्किंग, एंड वी हैव हेल्प देम क्लोज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड डील्स। तो दे वर ऑन द पोर्टल। उनके लिए भी जब व्हेन दे केम ऑन द पोर्टल उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था। उनको ये था आप करके दे दीजिए, आप बता दें, बस इसकी इन्फॉर्मेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन वी ट्रेन देम फ्रॉम द बिगिनिंग और फिर फाइनली दे हैड दिस थिंग। लेकिन अब ये जो कनेक्शन है दैट इज देयर लॉन्ग टर्म कनेक्शन। इट्स नॉट समथिंग कि अब हो गया बस ठीक है फाइनल है, पता नहीं है। तो हम आपको खाली एक पोर्टल, खाली एक सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड करें। व्हाट वी वांट इज दैट दिस पोर्टल, दिस सॉफ्टवेयर इज देयर, लेकिन हम आपको इक्विप करना चाहते हैं बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड वी वांट कि आप फाइनली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट ना हो। यू विल जस्ट गो ऑन द पोर्टल, यू विल जस्ट गो ऑन द ऐप, आप बस वहां जाएं और आपको पता हो कि कैसे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन निकालनी है अपनी प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, कुछ हमारे पार्टनर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में कि हम बिलीव ये करते हैं कि अकेला बंदा कुछ नहीं करता। तो हमारे यूएन कॉम ट्रेड के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो थी, डेस्टा के साथ पार्टनरशिप भी थी, उनसे हमने डेटा लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमने और भी पार्टनरशिप बिल्ड की हैं और उन पार्टनरशिप का मकसद ये है कि हम आपको फैसिलिटेट कर सकें बेहतरीन तरीके से। अच्छा जी, हमारा हेड ऑफिस अबू धाबी में है, हमारा डेवलपमेंट सेंटर कराची में है, और अब हमने अपना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्लोबल ट्रेड का बनाया है सियालकोट के अंदर, जिसका मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ पहले भी बताया था। सो प्लीज डू कम ओवर देयर and see how we can help you, inshallah ta'ala. One more thing that I would like to
मैं बताना चाहूँगी सबको कि आज जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं ये बात सुनने के लिए, उन सबको एक स्पेशल डिस्काउंट है, 30% ऑफ है पोर्टल के ऊपर। वैसे ये पोर्टल, ये ऐप फ्री है डाउनलोड करने के लिए। इसको डाउनलोड कर, आप में से बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड की भी है, तो इसको डाउनलोड करने के कोई प्राइस नहीं है। लेकिन आगे कुछ टूल्स ऐसे हैं जो क्या होता है, इन ऐप परचेजेस होती है, तो उसके ऊपर भी अब हमने 30% ऑफ रखा है उन लोगों के लिए कि जो आज इस सेशन के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। Thank you, ma'am, for the insights and a very informative session. Now I would like. Sir, Yes, please, sir. Please go ahead. Now I would like to ask Mr. Salman Afzal, Additional Collector Custom PSW. He will be providing us with सर आप insights यहाँ आएंगे? on Pakistan single window. सर बैठ जाइए प्लीज। जी मैं करेंगी ऐप खोलूँ। दिस वन ऑक्टोबर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी प्रेसिडेंट साहब आपका, ट्रेड फोरसाइट टीम आपका भी, आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे हम ट्रेड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में जैसे ट्रेड फोरसाइट एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या पब्लिक सेक्टर के अंदर भी टेक्नोलॉजी और उसके इस्तेमाल के ऊपर काम हो रहा है। और पाकिस्तान सिंगल विंडो इस सिलसिले में, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, जिसका प्राइमरी मकसद ये है कि ट्रेडर को फैसिलिटेट किया जाए और जो कॉस्ट और टाइम ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको रिड्यूस किया जाए। थैंक यू। मेरा इंट्रोडक्शन तो जैसे करा दिया गया जी, मेरा नाम सलमान अफजल है, मैं एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स हूँ। आजकल पाकिस्तान सिंगल विंडो में काम कर रहा हूँ और जो आज के टॉपिक मेरा होगा वो इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड एडवांटेजेस जो ट्रेड को सिंगल विंडो से होंगे। स्कीम जो इसके अंदर मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ वो बेसिक इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, इसका मॉडल और फाइनली ऑन टू क्वेश्चन आंसर सेशन एंड एडवांटेजेस के ऊपर हम बातें करते हैं। सो सबसे पहले हम अपना कंपनी का इंट्रोडक्शन कराते हैं कि जी हु वी आर एंड व्हाट वी डू। पाकिस्तान सिंगल विंडो एक फेडरल गवर्नमेंट ने कंपनी इस्टेब्लिश की है कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर, और इसको ऑपरेटिंग एंटिटी डिक्लेयर किया गया पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट के अंदर, ताकि ये पाकिस्तान सिंगल विंडो बना सके, इसको ऑपरेट कर सके और ट्रेडर्स के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। सो व्हाट इज अ सिंगल विंडो? पहला प्राइमरी क्वेश्चन ये आ जाता है हमारा कि जी पहला सिंगल विंडो है क्या? जो इसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन है सिंगल विंडो की, वो ये है कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को मल्टीपल फॉर्मेट्स में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और दिस एड्स टू योर कॉस्ट एंड दिस एड्स टू योर टाइम। तो इस सिंगल विंडो, इंटरनेशनली जो सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर रहे हैं उसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट कर दिया जाए कि वो एक इन्फॉर्मेशन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो सके और उसको आपको एक ही दफ़ा सबमिट करना पड़े, ताकि आपको बार बार मल्टीपल ऑफिसेज में जाके सेम इन्फॉर्मेशन ना देनी पड़े और आपको 4 जगह पे जाके या 5 जगह पे लोग ना भेजने पड़े, आप एक ही दफ़ा दे सकें। एंड सेकेंड, आपको ये मैनुअल जो पेपर बेस्ड है उससे निकाला जाए, बिकॉज मैनुअल इज स्लो, मैनुअल इज अनरिलायबल फॉर ट्रेडर एज वेल एज गवर्नमेंट। उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लेके जाएं जो कि मोर फास्ट एंड मोर रिलायबल। सो ये कॉन्टेक्स्ट है सिंगल विंडो एस्टेब्लिश करने का कि जब हम अपनी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को हमने इंटरनेशनली एनालाइज किया और उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रेडर है पाकिस्तान का,
वो एज कम्पेयर टू बाकी जो साउथ एशियन कंपैट्रिएट्स हैं वो $450 मिलियन एनुअल ज़्यादा स्पेंड कर रहा है ऑन जस्ट कॉस्ट एंड टाइम ऑफ बिजनेस के ऊपर। हमारे पास 74 के करीब रेगुलेटर्स हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ट्रेड को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में डील कर रहे हैं। कहीं पे आपको कोई लाइसेंस चाहिए, कहीं पे आपको उनका एक्सपोर्ट के लिए परमिट चाहिए, कहीं पे आपको इंपोर्ट के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। तो देयर आर 74 डिपार्टमेंट्स जो कि इस चीज़ को डील कर रहे हैं और वो सारे अलग-अलग अपने साइलोज में काम कर रहे हैं। कोई मैनुअल पे ऑपरेट कर रहा है, कोई डिजिटल हो गया है, कोई नहीं हुआ। सो ऑल दिस जिगसॉ पजल जो आपका ट्रेड का बना हुआ है, इस सारे को सॉर्ट आउट करने का जो क्लू है वो सिंगल विंडो के अंदर है। ये भी उसी चीज़ को ऑगमेंट फर्दर हम कर रहे हैं कि जैसा कि हम अपनी एक्सपोर्ट की कॉस्ट और टाइम देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हमें $450 की कॉस्ट आ रही है और 113 आवर्स लग रहे हैं। अगर हम उसको डेवलप्ड वर्ल्ड लाइक कोरिया से कंपेयर ना भी करें और इंडिया से भी कंपेयर करें तो इवन देन इंडिया इज हाफ ऑफ दैट, $270 और 64 आवर्स इंडिया के लग रहे हैं। सो हम इस चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए, इसी तरह इंपोर्ट्स को भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान में तकरीबन $417 लग रहे हैं और 200 प्लस आवर्स लग रहे हैं और इसी तरह इंडिया इज अगेन ऑन हाफ द फिगर्स। तो ये कौन सा, और इसी तरह जबकि हम देखते हैं कि जो हमारा जो लाइसेंसेस परमिट सर्टिफिकेट्स हैं, तो हम जब ये देखा कि 2017-18 के अंदर 2.4 मिलियन कंसाइनमेंट्स इंपोर्ट हुई और उनके अंदर से 2.1 मिलियन कंसाइनमेंट्स थी जिनमें कोई ना कोई आपको लाइसेंस चाहिए था, परमिट चाहिए था या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए थी अदर देन कस्टम डॉक्यूमेंट जो कि आपको चाहिए थी। और इस सारे को सबमिशन करने के लिए पहले ये एक खिचड़ी नुमा निज़ाम था जहाँ पे आपको हर तरफ हर दफ्तर में अलग-अलग जाके सबमिशन करनी थी, लेकिन इस सिंगल विंडो के अंदर हम ये लेके आ रहे हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन एक ही दफ़ा सबमिट हो और वो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाए, वो अपना प्रोसेस साइमल्टेनियसली स्टार्ट करें और आपकी कंसाइनमेंट कम से कम टाइम में क्लियर हो, पोर्ट से बाहर हो। ये हमारा गवर्नेंस मॉडल पाकिस्तान सिंगल विंडो का है। पाकिस्तान सिंगल विंडो जिस तरह शुरू में मैंने कहा जी एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। हमारे जो फोर्स ओवरसाइट है वो गवर्निंग काउंसिल कर रही है जिसको हेड कर रहे हैं मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। उसके अंडर सेक्रेटेरिएट है और सेक्रेटेरिएट के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीईओ पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी है जिनके नीचे पे टेक्निकल टीम्स हैं। सो हमारा सबसे बड़ा टूल जो है कि किसी भी चीज़ को हम ऑपरेशनलाइज करें या जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए सबसे बड़ा हमारा टूल ये गवर्निंग काउंसिल है। जहाँ पे कोई हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है किसी डिपार्टमेंट के साथ, गो टू दी गवर्निंग काउंसिल, FM साहब इशू सुन के दोनों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का डिसाइड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। हमारा स्कोप, हम एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं जहाँ से आप ट्रेडर्स क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर सकें। हम अपना जो ट्रेड का प्रोसेस है गवर्नमेंट का उसको री इंजीनियर भी कर रहे हैं और उसकी बैक एंड पे ऑटोमेशन भी कर रहे हैं। पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम आगे हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और फिर लास्टली जो हम जिसके ऊपर बात कर रहे होंगे वो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इस वक्त का जो कि ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल है। बिकॉज हमारे हिसाब से ट्रेड के लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नंबर 1 टाइमली इंफॉर्मेशन और नंबर 2 उसकी टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट वेदर इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट। जो फेज 1 हमने रोल आउट किया है इसके अंदर हमने 4 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और PSQC है। ये डिपार्टमेंट्स हमारे साथ फुली इंटीग्रेट हो गए हैं। इनकी कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की अब आपको उनके ऑफिस जाके लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिंगल विंडो को जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसी की बेसिस पे उनकी सर्टिफिकेशन इशू होती है। इसके अलावा आप लोगों को मालूम होगा कि EIAF पहले इशू होता था या फॉर्म E इशू होता था। हमने सारे बैंक्स के साथ इंटीग्रेट किया है और वो स्टेप हमने रिमूव कर दिया जो कि हमारे ख्याल में तकरीबन 3 दिन का प्रोसेस था, उसको हमने डिजिटलाइज कर दिया है। अब हमारे पास जो कस्टम्स के पास इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी जो कि पहले आप जाके हार्ड कॉपी में लेके आते थे, अब वो डिजिटली बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है। तो ये 2 से 3 दिन का प्रोसेस जो है ये हमने आपका टाइम के अंदर रिड्यूस कर दिया हुआ है। इसके बाद हम फिर सिंगल डिक्लेरेशन हमने लॉन्च कर दी हुई है जो कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों के लिए अब शुरू हो गई है।
सिंगल डिक्लेरेशन का पर्पस यही है कि आप पहले जब गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करते थे तो आप सिर्फ कस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते थे। अब जब सिंगल डिक्लेरेशन है, इसमें जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उस एचएस कोड में इन्वॉल्व होंगे उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे कैप्चर कर ली जाएगी और वो साइमल्टेनियसली हर डिपार्टमेंट को चली जाएगी ताकि साइमल्टेनियस प्रोसेस शुरू हो जाए। इसके अलावा हमने जो जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमारे साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं उनकी जो फी या चार्जेस थे वो सारे हम यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी अब प्रोवाइड कर रहे हैं उन डिपार्टमेंट्स को जहाँ पे पहले ये नहीं थी, वो भी अब इसमें आ जाएंगे। यूनिफाइड हम रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं, इंटीग्रेट, हम सारे आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसको। सो टू गो विद दिस, सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन करनी है। आप सब पहले मोस्टली आई थिंक सब्सक्राइब तो कर चुके हैं, बट इट इज ओनली 30 मिनट्स प्रोसेस एंड जिसमें आप डाटा फिल करते हैं, बायोमेट्रिक सब्सक्रिप्शन है एंड 500 रुपीज़ के चार्जेस पे करते हैं एंड 30 मिनट्स में आपकी सब्सक्रिप्शन हो जाती है। उसके अंदर हमने कुछ चीज़ों में दिया, प्रॉब्लम में आए सीनियर सिटीजन्स थे या जिनके बायोमेट्रिक नहीं हो रहे थे, उसके अंदर हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि जहाँ पे ये चीज़ें बायोमेट्रिक नहीं हो सक रही तो वो अपने रेलिवेंट कलेक्ट्रेट में जाके ACDC रजिस्ट्रेशन के सामने पेयर होते हैं और वहाँ से उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। सो वी आर फ्लेक्सिबल इन दिस प्रोसेस। INE फॉर्म जैसे मैंने बताया कि हमने रिमूव कर दिया है, उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है, हमने सारे कमर्शियल बैंक्स को अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया है। I और E फॉर्म्स को हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया है जो कि हमें डिजिटली रिसीव हो रहा है। सिंगल डिक्लेरेशन इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स दोनों का स्टार्ट हो गया है। आपको अब किसी डिपार्टमेंट के लिए, जो डिपार्टमेंट्स हमारे साथ इंटीग्रेट हो गए उनके लिए कोई डॉक्यूमेंट मैनुअली जाके सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हम वो बात करते थे कि आप पहले कस्टम्स की डिक्लेरेशन फाइल करते थे, उधर वही NTN की इंफॉर्मेशन, वही अपना बिजनेस एड्रेस, वही सारी डिटेल आप दे रहे होते थे और फिर आप PSQCA के पास जाते थे और उधर भी आप एक एप्लीकेशन लेके दे रहे होते थे जिसमें वही सारी चीज़ें होती थी। तो वो अब देने की ज़रूरत नहीं है, हमने कंपार्टमेंटलाइज इंफॉर्मेशन कर दी है, हम उसको आपसे कैप्चर करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इस वक्त हम तकरीबन 90% पेमेंट हमारी कस्टम्स की जितनी है वो तकरीबन 90% के करीब हम ऑनलाइन कर चुके हुए हैं। रीबॉक के अंदर भी और PSW के अंदर हम बाकी डिपार्टमेंट्स को भी लेके आ रहे हैं। ये एक इस चीज़ का था असेसमेंट थी कि आप अगर सिर्फ कस्टम्स को ऑटोमेट कर दें और बाकी डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेट ना करें, उनको रियल टाइम उस पर ना लेके आएँ, तो तब भी बिजनेस का लॉस है इन टाइम एंड कॉस्ट। तो ये सिंगल विंडो जो है ये अब कस्टम्स तो ऑटोमेटेड था ही था, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स को भी ऑटोमेट कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं ताकि आपका टाइम और आपकी कॉस्ट बच सके। लैब मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जिधर भी कोई लैब की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे कस्टम्स की क्लियरेंस के अंदर या किसी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। सैंपल ड्रॉल से लेके लैब पेमेंट फी तक और लैब की रिपोर्ट तक वो हम ऑनलाइन कर चुके हैं। ये एक बिल्कुल हम नई चीज़ लेके आ रहे हैं, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट है। प्रीवियसली आप सब अवेयर हैं कि कस्टम्स अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम चलाता था जिसमें 60% के करीब कंसाइनमेंट्स ग्रीन चैनल पे जा रही थी, लेकिन बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो थे वो सारे के सारे उस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से बाहर थे, उनके पैरामीटर्स उसमें शामिल नहीं थे। और अगर आपकी कंसाइनमेंट ग्रीन चैनल में भी गई हुई है लेकिन उसके ऊपर प्लांट प्रोटेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट आ गई है तो भी उसको ग्रीन चैनल से निकाल दिया जाता है। अब हम ये कर रहे हैं कि उन सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिनको 74 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हम सबको इस रिस्क बेस पे लेके आ रहे हैं ताकि हर डिपार्टमेंट का जब हम कहें कि कोई कंसाइनमेंट ग्रीन चैनल में गई है तो वो तमाम डिपार्टमेंट्स की तरफ से ग्रीन चैनल में जा रही है, जिसका हमारा पर्पस डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी है कि जहाज से कंटेनर सीधा आपके ट्रक पे उतरे और गेट से बाहर निकल जाए। ग्रीन चैनल की डेफिनेशन हम ये ले रहे हैं, उसमें मतलब कहीं पे भी उसको पोर्ट पे कोई और टाइम कंटेनर को या कंसाइनमेंट को स्पेंड ना करना पड़े, वो सीधा पोर्ट से बाहर निकले। इसी तरह जॉइंट इंस्पेक्शन से हम लेके आ रहे हैं जहाँ पे वही 74 डिपार्टमेंट्स थे जिनको कि आप एक दफ़ा कस्टम्स एग्जामिन करके चला जाता है, उसके बाद कोई दूसरा डिपार्टमेंट आता है और वो कहता है कि हमने एग्जामिन करना है, उसके ऊपर वो कंटेनर ऑफलोड करना पड़ता है दोबारा, एंड उसके साथ फिर तीसरा डिपार्टमेंट आ जाता है। तो वो सारा का सारा चीज़ हम ख़त्म कर रहे हैं। हम अब अगर किसी भी डिपार्टमेंट ने या किसी भी एक ने या दो ने डिपार्टमेंट ने अगर कंटेनर की एग्जामिनेशन करनी है, हम उसके अंदर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड देंगे उनको कि इस टाइम पीरियड में आके अपनी एग्जामिनेशन कर लें
कस्टम्स ने करनी है, PSQCA ने करनी है, सीड वालों ने करनी है, ANF ने करनी है, तो वो सारे के सारे उसी टाइम में आके अपनी एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए कंटेनर एक दफ़ा ग्राउंड हो, दोबारा प्रॉपरली डी स्टफ हो और जाए, ताकि ये जो एक हमारा गिला है ट्रेडर्स का कि जी मल्टीपल टाइम्स कंटेनर को ऑफलोड करना पड़ता है पोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट का हो या एक्सपोर्ट का हो, वो ख़त्म किया जा सके। इसके बाद हम एक पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम बना रहे हैं। दिस इज अगेन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। जिस तरह पाकिस्तान सिंगल विंडो ट्रेड के 74 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट कर रही है, उसी तरह हमारा ये सिस्टम जो पोर्ट के ऊपर ऑपरेट करने वाले जितनी एजेंसीज हैं, प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट की हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, जिसमें कि टर्मिनल ऑपरेटर भी हैं, इसमें कस्टम्स डिपार्टमेंट भी होगा, इसमें ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसमें क्लियरिंग एजेंट्स हैं, शिपिंग एजेंट्स हैं, ताकि वहाँ पे भी जब इंफॉर्मेशन आप सबमिट करते हैं, कस्टम्स की इंफॉर्मेशन सबमिट की, उसी तरह यहाँ पे भी जिस वक्त आप अपना मैनिफेस्ट फाइल करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन शिपिंग लाइन के पास भी चली जाए, वो इंफॉर्मेशन पोर्ट के पास भी चली जाए, वो कस्टम्स के पास भी चली जाए, वो इंफॉर्मेशन भी आपको एक ही दफ़ा सबमिट करनी पड़ेगी। ये पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम का डिस्प्ले है, हाउ इट विल बी वर्किंग, के तमाम डिपार्टमेंट सिस्टम लिंक होंगे, इंफॉर्मेशन एक ही दफ़ा शेयर हो रही होगी और सबको रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जा रही होगी। टैरिफ मैनेजमेंट सिस्टम, हम इसके अंदर अगेन ये वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट का है। हम जो टैरिफ और इंपोर्ट पॉलिसी की गैप्स थे हमने उनको एनालाइज किया है। हम अपना टैरिफ इस वक्त 12 डिजिट्स पे लेके जा रहे हैं ताकि हम डिटेल डिस्क्रिप्शन बेस्ड जा सकें, आपकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी हो सके और उसके ऊपर अगर कोई रेगुलेटरी कंट्रोल है तो वो भी उसके ऊपर हो सके। प्रेजेंटली हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल, जिसको हम ट्रेड वर्ड्स कह रहे हैं। इसके अंदर हमने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। मेरे कोलीग हाफिज अहमद साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, वो आगे इसके ऊपर ब्रीफ करेंगे आपको, एंड उसके बाद फिर हम आपसे क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। सो ओवर टू यू हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच। Assalamualaikum. बहुत शुक्रिया सलमान अफजल साहब, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन एंड comprehensive presentation on PSW. मैं आपके सामने आज ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल के हवाले से एक डेमो दूंगा और जिसमें वॉक थ्रू होगा। मैं एक इस हवाले से इंफॉर्मेशन थोड़ी सी प्रोवाइड कर दूं कि ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल जो WTO का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उसकी एक कमिटमेंट थी और उसकी एक रिक्वायरमेंट थी, और पाकिस्तान ने वो जो कमिटमेंट की उसको विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फुलफिल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 मंथ्स के अंदर हमारा जो ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल है वो हमने बना लिया और मार्च 2022 में उसको लॉन्च किया। मैं आपसे स्क्रीन में शेयर करता हूँ और आपसे आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये हमारा पाकिस्तान सिंगल विंडो का ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल का पहला पेज है मेन, और पे आपसे मैं शेयर करूंगा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो इस पे हम आपसे scheme to successful trade. To be a successful trader in today's evolving critical, you need travel, all existing laws, regulatory requirements, compliance procedures, and most importantly, the applicability of the taxes. This information is currently scattered, difficult to find, outdated, and in many cases incomplete. To facilitate international trade, Pakistan Single Window Company presents to you the Trade Information Portal of Pakistan. TIP. The Trade Information Portal of Pakistan is an effort of Pakistan Single Window Company that has been completed in just 8 months and fulfills Pakistan's commitment to the WTO Trade Facilitation Agreement. TIP is a
free service in the form of an easy-to-use website containing all the information you need to conduct cross-border trade successfully. Start with the homepage www.tip.gov.pa and select the language Urdu or English that you wish to use. To enhance user experience, information on the portal is arranged in a simple way. You can navigate through the content by using the menu at the top, the sidebar, or at the end of the page. The first three menu items provide information about the TIP project, the PSW company, and all stakeholders. The core feature of TIP provides digitized customs tariff linked with Pakistan's cross-border trade agreement. This enables you to find the applicable duties and taxes along with all the trade regulations on almost 10,000 unique goods. For each commodity, you will find standard rates of duties and taxes, as well as preferential rates of customs duties offered under Pakistan's bilateral and multilateral trade agreements. If you don't know the AGIS code, simply search by typing in the common name, the product family, or product brand in the product search function. To facilitate the setting up of an import, export, or transit-related business in Pakistan, the simplified guides to trade inform the prospective traders about basic registrations, key customs clearance procedures. For the first time in Pakistan, comprehensive and reliable trade statistics based on over 9 million transactions have been made public for better trade analysis and making informed decisions. To keep Pakistani products competitive and integrated in the post-pandemic global value chains, to the market access feature, TIP equips our exporters with a reliable tool to remain informed about the applicable tariff and regulations in top 25 export markets. Portal of Pakistan is a flagship achievement of Pakistan Single Window. On behalf of the federal government of Pakistan, Pakistan Single Window Company thanks the government agencies, our private sector, and high development partners, the USAID and the Global Bank for supporting the project. At PSW, we encourage user feedback that helps us enhance the content and features of the portal based on your needs. Please share your feedback, comments, and observations to help us connect you to the global value chains. Thank you. ये अब आवाज ये ऊपर वो कैंसिलेशन वाला था इको जी अस्सलाम वालेकुम आवाज आ रही होगी ये आ रही है मैं अभी पेज शेयर करता हूँ जी अब हम एक वॉक थ्रू लेते हैं हमारा जो ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल है जैसे कि आपने वीडियो में देखा और इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम दी बिगिनिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले दो जो स्क्रीन्स में आपको नजर आ रहे हैं ये ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल का इंट्रोडक्शन है उसके बाद ट्रेड बॉडीज जो कि स्टेक होल्डर हैं और इसी तरह चैम्बर्स इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रेगुलेटरी जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हैं कि कौन से इदारे हैं जो गवर्नमेंट के ट्रेड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और उनका क्या प्रोसीजर्स हैं वो आपको यहाँ अवेलेबल होंगे हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उसके अंदर मुख्तलिफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में जो इदारे काम कर रहे हैं उनके लिंक प्रोवाइड किए गए हैं तो इस तरह जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है
इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ओवरऑल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कंट्री में जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इदारा है DGTO, उसके साथ जो अप्रूव्ड है उनकी यहाँ लिस्ट दी गई है और इसमें प्रोविंसेस वाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो जैसे डिफरेंट चैम्बर्स हैं, गुजरात और लाहौर और आज जैसे आपका फंक्शन हमारा सियालकोट चैम्बर में हो रहा है, उसकी डिटेल यहाँ प्रोवाइड की गई है और ये आप इसको भी देख सकते हैं। इसी तरह हमने चैम्बर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो हमने स्पेसिफिक विमेन चैम्बर्स को सेपरेट किया है कंट्री में प्रोविंसेस वाइज, और इसी तरह स्मॉल चैम्बर्स वो भी कंट्री में, और इसी तरह जॉइंट चैम्बर्स जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड की है। और इसी तरह हम ट्रेड एसोसिएशंस जो अप्रूव्ड हैं जो DGTO के साथ, उनकी एक लिस्ट दी है। ओवरऑल एसोसिएशंस और लाइसेंस ट्रेड एसोसिएशंस पंजाब में और ओवरऑल पाकिस्तान में उनकी लिस्ट प्रोवाइड की गई है। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज जो कि ट्रेड को रेगुलेट करती हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के तहत जो इदारे काम कर रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जिसमें पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स अवेलेबल हैं, उनकी इंफॉर्मेशन दी है। नेशनल बैंक है डिफरेंट लोकेशंस पे, और ऐसे ही जो इस्लामिक बैंक्स हैं डिफरेंट काम कर रहे हैं, उनकी कंप्लीट डिटेल दी गई है। ये तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान सिंगल विंडो की इंसेप्शन से जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर थे तमाम बैंक्स पाकिस्तान के, वो इंटीग्रेट हो चुके हैं और उसमें सलमान अफसर साहब ने जैसे बताया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसमें होता है, और अब एक्सपोर्ट फॉर्म और इंपोर्ट फॉर्म जो पहले था उसको उसको डिलीट कर दिया गया। इसके बाद हम सबसे जो इसका अहम फीचर है जिसको हम रिमार्केबल फीचर कह सकते हैं पाकिस्तान सिंगल विंडो का, जो ये ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल है, इसमें आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में पहली दफा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है हमारे ट्रेडर्स के लिए। इसमें पहले आपको फॉर एग्जांपल आमतौर पे FBR की वेबसाइट पे आपको सर्च करना पड़ता था कि क्या PCT कोड है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, लेकिन अब वो सारी डिटेल्स और उसकी गाइडेंस कि आप पाकिस्तान कस्टम टैरिफ कोड को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी एक डिटेल यहाँ प्रोवाइड की गई है कि फॉर एग्जांपल कोई भी PCT कोड होता है तो उसमें पहले 2 डिजिट चैप्टर कहलाते हैं, उसके बाद वाले सब चैप्टर, फिर हेडिंग और सब हेडिंग। तो पहले 6 जो डिजिट होते हैं वो कॉमन क्लासिफिकेशन होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और जो 8 डिजिट में लास्ट 2 होते हैं वो नेशनल हेडिंग होती है। और इस दफा जो पाकिस्तान सिंगल विंडो के अंदर इंटीग्रेटेड टैरिफ फॉर ट्रेड हमने बनाया है, उसके अंदर हमने 12 डिजिट के ऊपर इसको प्रोवाइड किया है, और लास्ट जो 4 डिजिट्स हैं वो हमने यूनिक प्रोडक्ट और कमोडिटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर एक आइटम ऐसा है 8 डिजिट तक तो एक है, लेकिन उसके बाद कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसपे रेगुलेटरी ड्यूटी बनती है और कुछ हैं जिसपे नहीं, तो हमने 4 डिजिट आगे इजाफा करके जो रेगुलेटरी ड्यूटी जिन पे लगती है उसको सेपरेट किया, और जिसपे नहीं है उसको हमने सेपरेट किया। हम इसको मजीद देखेंगे डिटेल में। तो इसके बाद हम इस पे ये देखेंगे कि एक जो सबसे अहम बात इसमें बताई गई है कि यहाँ आपने अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है कि उसके ऊपर ड्यूटी क्या है या क्या रेगुलेटरी प्रोसीजर है, इसको सर्च करने के 3 तरीके हैं। पहला है सर्च प्रोडक्ट। आपको अगर प्रोडक्ट का नेम पता है लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन नहीं अवेलेबल या आपको उसका PCT कोड पता नहीं है, आप उसका सिर्फ प्रोडक्ट नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप हम में से कोई सर्च करना चाह रहा है कि 3D प्रिंटर के बारे में क्या रेगुलेशंस हैं, उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर टैरिफ के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, तो अगर आप यहाँ सिंपल प्रिंटर लिखें और उसके बाद सर्च पे क्लिक करें तो अब आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि प्रिंटर के हवाले से ये वाले आइटम्स हैं, और यहाँ पे आपको 3D प्रिंटर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे 3D प्रिंटर, अब चूंकि 3D प्रिंटर के डिस्क्रिप्शन पाकिस्तान कस्टम टैरिफ में एज सच नहीं अवेलेबल है, वहां पे इसका नाम डिफरेंट है, वहां पे इसे मशीन्स फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे कहा गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये हमें उसका PCT कोड, चैप्टर बता रहा है, हेडिंग बता रहा है, सब हेडिंग और कोड प्रोवाइड कर रहा है।
और इसके साथ इसके ऊपर टैरिफ कितना है वो बता रहा है कि कस्टम ड्यूटी कितनी है और एडिशनल कस्टम ड्यूटी कितनी है, सेल्स टैक्स है और इनकम टैक्स। फिर उसके बाद मुझे बता रहा है कि इसका मेजर क्या है, यानी अगर किसी ने इंपोर्ट करना है तो कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ ये बता रहा है कि एनओसी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फॉर द इंपोर्ट ऑफ 3D प्रिंटर। अब आप ये देख सकते हैं कि हम ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल में वो तमाम रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको इस तरीके से बताया गया है कि अगर किसी ने ये सर्च करना है कि उस मेजर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और उसके हवाले से प्रोसीजर क्या है, तो वो यहाँ प्रोसीजर में यहाँ पे क्लिक करेगा व्यू, तो उसके सामने वो प्रोसीजर आ जाएगा कि कैसे वो 3D प्रिंटर को इंपोर्ट के लिए एनओसी ले सकता है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का जो कि अभी तक पेपर बेस्ड सिस्टम है, ये भी हम पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ इंटीग्रेट होने जा रहा है, इस पे वर्किंग हो रही है और अब जब तक कंप्लीट नहीं होता तो ये पेपर बेस्ड होगा और उसके बाद ये भी वेब बेस्ड ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इस वक्त जो पेपर बेस्ड प्रोसीजर है उसमें हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एड्रेस दिया है, उसके टाइमलाइन बताई है, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोसेस स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है और इसी तरह एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन इसी तरह आप किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से सर्च करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंपोर्ट करते वक्त या एक्सपोर्ट के ऊपर किस तरह की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह अब हम वापस जाते हैं कि और क्या तरीका है किसी प्रोडक्ट को सर्च करने का। तो हम फॉर एग्जांपल आपको ब्रांड नेम आता है, मसलन आप ये चाहते हैं कि एप्पल की प्रोडक्ट आप सर्च करें कि एप्पल ब्रांड वाली कौन सी आइटम्स ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल में या पाकिस्तान में उसके ऊपर रेगुलेशंस क्या है। हम यहाँ से प्रिंटर को खत्म करके हम सिर्फ ब्रांड को अगर सर्च करें कि एप्पल ब्रांड की कौन सी आइटम्स हैं तो ये हमारे पास उनके पीसीटी कोड और उनकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। हमने ऑलमोस्ट 15,000 के करीब ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स नेम ऐड किए हैं और ये सब इसलिए है ताकि हमारे जो ट्रेडर्स हैं, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, उनके लिए सहूलत हो, उनके लिए सर्च करने की, स्मार्ट सर्च करने की फैसिलिटी अवेलेबल हो। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो एप्पल की फॉर एग्जांपल फोन है वो अगर किसी ने अप्लाई इंपोर्ट करना है तो उस पर क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। हम ये देखते हैं कि मोबाइल फोन की जो पीसीडी कोड है ये अवेलेबल है, इसके सामने तमाम ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कोई किसी भी ब्रांड से सर्च करता है तो उसको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर इसी तरह ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल ने टैरिफ प्रोवाइड किया है, फिर प्रोडक्ट्स का बताया है कि इसके ये नाम है, इस पे मेजर जो अवेलेबल है वो बताया है कि इसके लिए टाइप अप्रूवल रिक्वायर्ड है और वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की अवेलेबल है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी मेजर है तो फिर उसका नेक्स्ट हमने प्रोसीजर बताया है कि ये आपको जो एनओसी या टाइप अप्रूवल या कोई भी सर्टिफिकेट है उसके लिए क्या प्रोसेस इख्तियार करना होगा। तो उस प्रोसेस को देखने के लिए आप यहाँ व्यू कर सकते हैं। ये आपको रेलिवेंट जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, इस केस में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ ये बता रहा है कि उनका सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट है। इट मीन्स कि आप ईमेल पे जो इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं और आपको रेलिवेंट सर्टिफिकेट मिल सकता है। इसी तरह ये उनकी फी, उनका प्रोसेसिंग टाइम, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट आर द प्रोसेस स्टेप्स, वो बता रहा है कि स्टेप 1 पे आप एप्लीकेशन फिल करें और उसको आप इंफॉर्मेशन को उनकी वेबसाइट है और डर्ब्स का सिस्टम है उसके साथ आप लिंक किया हुआ है, उसके थ्रू आपको फाइनली उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी भी इस वक्त पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ इंटीग्रेशन के प्रोसेस में है। सून हम ये वाला हमारा जो इदारा है ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा और उस पे फिर वो PSW के थ्रू इससे जो भी इम्पोर्टर है वो अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। तो जिस तरह कमोडिटी एंड टैरिफ के अंदर मैं जैसे आपसे गुजारिश कर रहा था कि इसमें डिफरेंट तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आप HS कोड वाइज भी सर्च कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई HS कोड आता है आप उसको सर्च करें तो वो भी आपको बता सकता है। इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन अगर आपको आती है आप वो डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड करें। मसलन हम पोटैटो को सर्च करते हैं कि उसके ऊपर क्या
अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो ये हमें बताएगा। अगर आपने सिर्फ एक लफ्ज लिखा है वो आपको पूरी डिटेल बताएगा कि इसमें किस तरह का आपको चाहिए और उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। आप उस पर क्लिक करेंगे, ये आपको 12 डिजिट वाले पीसीडी कोड पे ले जाएगा और फिर आप फर्दर क्लिक करें तो अगेन आपको टैरिफ दिखाएगा और उसके बाद इसके मैयर बताएगा कि इसके लेवल जो रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये एक रिमार्केबल फंक्शन है जो ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल में प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद आप ये देखें कि सिर्फ यहाँ पे आपको टैरिफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि आपको इसका जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल आप ये सर्च करना चाहते हैं, अच्छा मैं एक बात और यहाँ मेंशन कर दूं, यहाँ पे आपको पूरा टैरिफ भी अवेलेबल है। आप लिस्ट ऑल में जाएंगे तो आपको 01 चैप्टर से लेके ये 97 जो चैप्टर है उस तक इसमें इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। आप किसी भी चैप्टर को फर्दर सर्च कर सकते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आप वेजिटेबल का चैप्टर में आते हैं, आप वहां देखते हैं कि इसमें जो टोमेटोज हैं उसके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इस तरीके से भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाने में ये मदद कर रहा है। इसमें आप देखिए कि हमने सर्च किया था कि टोमेटोज जो हैं वो उस पर क्या मेजर्स है, तो इसने बताया कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट अवेलेबल रिक्वायर्ड है और इसी तरह उसका प्रोसीजर है। और चूंकि आप उसके प्रोसीजर पे जाएंगे ये आपको उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करेगा। तो अब हम आते हैं कि इसमें क्या और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स का हमने सेक्शन दिया है, ये एक तरह से एक लाइब्रेरी है। आप सब वो लाइब्रेरी में वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल आप सर्च करना चाहते हैं कि किसी भी जो लेदर से रिलेटेड अगर कोई इदारा फॉर एग्जांपल काम कर रहा है, जिसमें हम अगर देखते हैं कि एक इदारा है सियालकोट मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी, हम ये चेक करते हैं कि इससे रिलेटेड अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट चूंकि ये इशू नहीं करता तो इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं पाकिस्तान टोबैको बोर्ड के हवाले से जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, क्योंकि वो भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। हम इस इदारे का फॉर एग्जांपल हम ये सर्च करते हैं कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उसका पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस है जो कि ये इंफॉर्म करता है कि इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो कि पाकिस्तान पीएनआरए का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, तो वो यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो एक आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ पोर्टल नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी है जो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरह यहाँ आप ये सर्च करना चाह रहे हैं कि किसी इदारे का मैयर उस पर क्या लगा हुआ है, उसकी किसी आइटम की रिक्वायरमेंट, किसी आइटम की इंपोर्ट के ऊपर या एक्सपोर्ट पे। अब यहाँ जो कि एक मैयर यहाँ अवेलेबल है, यहाँ हम ये सर्च करते हैं कि सियालकोट जो इदारा है सियालकोट का मटेरियल टेस्टिंग के हवाले से उसका मैयर कौन से अवेलेबल है। आप इस पे सर्च करेंगे तो ये अब आपको बताएगा कि यहाँ पे ये इसका मेजर्स है, सर्टिफिकेट ये इशू करता है। और एज पर एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर द एक्सपोर्ट ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर अलाउड आफ्टर सबमिशन ऑफ प्रोविजनल कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस इशूड बाय सियालकोट मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो ये भी इदारा चूंकि सर्टिफिकेट इशू करता है तो इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये भी पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ इंटीग्रेट होगा। अभी इसका हम ये देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है, वो भी यहाँ अवेलेबल है। तो ये पेपर बेस्ड प्रोसीजर अवेलेबल है, तो जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो इसका भी वेब बेस्ड प्रोसीजर बन जाएगा। तो इसका वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि इसके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस फ्लो क्या है कि एक इंपोर्टर जो है वो एक एक्सपोर्टर जो है वो कैसे इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकता है। इसी तरह आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स प्रोसीजर्स जैसे कि मैंने बताया वो अवेलेबल हैं, फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो तमाम किसी भी किस्म की ट्रेड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, वो वाले फॉर्म्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये पोर्टल सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता बल्कि ये गाइड भी प्रोवाइड करता है। अगर कोई एक्सपोर्टर बनना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि कैसे वो एक्सपोर्टर बन सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमने एक गाइडेड जर्नी यहाँ अवेलेबल किया है
जिसमें वो देख सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये स्टेप्स हैं जो वो फुलफिल करेगा तो वो एक्सपोर्टर बन सकता है। इसी तरह इंपोर्टर का है, हमने गाइडेड जर्नीज यहाँ रखे हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स है तो उसके लिए उसे क्या रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करनी होगी, तो रजिस्ट्रेशन होगी, एडिशनल रजिस्ट्रेशन है, कस्टम क्लियरेंस तक की एक गाइडेड जर्नी इस पे अवेलेबल है। और इसी तरह हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हैं कि यूज्ड मोटर व्हीकल है उसकी इंपोर्ट कैसे हो सकती है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि इसके लिए ये गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट पॉलिसी में एक स्कीम है पर्सनल बैगेज ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, वो स्कीम के तहत ये यूज जो व्हीकल है वो इंपोर्ट हो सकती हैं। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि वो कौन से अफराद हैं जो ला सकते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी ड्यूटी इस पे मेंशन है। तो आप ये देखिए कि गाइडेड जर्नी इन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है। और इसी तरह हम जो कि डिफरेंट चैम्बर्स के साथ और ट्रेडर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अगर कोई एसोसिएशन या ट्रेड या चैम्बर अगर ये चाहता है कि हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर गाइडेड जर्नी बनाएं तो हम वो भी बना के आपके लिए इसमें रख सकते हैं। आप ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ सिट्रस, राइस एंड मैंगो के ऊपर हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्टर के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि वो उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो सिट्रस एंड मैंगोस को एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके बाद हम इसका एक बहुत अहम फीचर वो मार्केट एक्सेस का है। आप ये देखें कि इसके ऊपर 9.6 मिलियन की ट्रांजैक्शन का डाटा अवेलेबल है लास्ट 2 इयर्स का, और इसमें आप सर्च कर सकते हैं कि जो टाइम हमारी टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज कौन सी हैं, टॉप एक्सपोर्ट कंट्रीज कौन से हैं, टॉप इंपोर्ट कमोडिटीज कौन सी हैं, उसमें आप उनको कमोडिटी वाइज भी सर्च कर सकते हैं, कंट्री वाइज भी सर्च कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हमारी टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, तो ये अभी हमारे सामने उसका डाटा शो करेगा। हम ये चूंकि ये डाटा 2 साल पे है और इसमें ऑलमोस्ट 9.6 मिलियन ट्रांजैक्शंस का डाटा है, और हमारा जो इसका सोर्स है वो वीबॉक का डाटा है जिसके ऊपर ये बेस कर रहा है। इस पे आप देखेंगे ये हमें बता रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारी टॉप जो है ना उसकी टॉप प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब आप इसमें एक और इंफॉर्मेशन हम ये इसमें जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए हमने रखी है कि जो इसमें अगर आप कमोडिटी वाइज और इसी तरह कंट्री वाइज भी इसमें सर्च कर सकते हैं। अब अगर इसको हम कंट्री वाइज सर्च करें फॉर एक्सपोर्ट और उसमें हम किसी कंट्री को स्पेसिफाई करें तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन भी ये प्रोवाइड करेगा। इसी तरह एक हमने सहूलत यहाँ रखी है कि आप अगर अपनी मार्केट सर्च करना चाह रहे हैं कि किस कंट्री में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो टॉप 25 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन सी हैं और उस कंट्री में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपके लिए उस यहाँ पे वो कंट्रीज दिए गए हैं, आप उस कंट्रीज के ऊपर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं कि यूएई में कौन सी हमारी टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज हैं, आप देखते हैं कि वहां पे मैंगोस फॉर एग्जांपल 4th नंबर पे है जो एक्सपोर्ट हो रहा है। हम इस पे क्लिक करते हैं, ये हमें ये बताएगा कि यूएई के अंदर मैंगोस के ऊपर क्या ट्रेड रिलेटेड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका टैरिफ क्या है, कस्टम टैरिफ क्या है, ट्रेड रेमेडीज क्या है, उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए आप ये कहें कि एक दरिया को कूजें बंद कर दिया है यहाँ पे, और उसकी हेल्प इस सेंस में है कि उसको किसी और जगह डिफरेंट जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है। और आप ये देखेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट अपने ट्रेडर्स को दे रही है, एक्सपोर्टर्स को दे रही है। इसका पर्पस सिंपल ये है कि हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो अपनी मार्केट्स को सर्च करें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और अपने कंट्री को ज्यादा बेहतर बनाएं, और ताकि हमें फॉरेन एक्सचेंज मिले और हमारे जो मुश्किलात हैं वो कम हो, और ट्रेडर भी इसमें उतना ही बेनिफिट हासिल कर सकता है। और इसमें इसके बाद यहाँ पे हमने ट्रेड एग्रीमेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि पाकिस्तान ने किस कंट्रीज से क्या ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, उनकी डिटेल है। रिसेंटली आपने देखा कि उज्बेकिस्तान और तुर्की के साथ हमारी एग्रीमेंट्स हुए, उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और तुर्की और उज्बेकिस्तान। तो आप यहाँ से रेलेवेंट जो कंट्रीज के साथ हमारी ट्रेड के एग्रीमेंट्स हैं उनको भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह
जो WTO का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की एक रिक्वायरमेंट थी कि हर कंट्री अपने SPS और TBT इंक्वायरी पॉइंट्स नोटिफाई करेगा। हमने इस ट्रेड पोर्टल पे उन एग्रीमेंट्स के तहत जो इंक्वायरी पॉइंट है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। कोई भी आदमी दुनिया में किसी भी जगह ये सर्च करके इनसे राब्ता कर सकता है और अपनी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करा सकता है। इधर बैठ के देगा कहाँ आ रही है? أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Where is Dr. Green? जी इसी तरह जैसे मैं बता रहा था कि SPS और TBT इंक्वायरी पॉइंट्स यहाँ प्रोवाइड कर दिए गए हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें हमने जनरल रिसोर्सेज के तहत डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रेड के ऊपर वो प्रोवाइड किए हैं। आपको मालूम है कि इंपोर्ट कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनकी इंपोर्ट के लिए प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है, वो कंपनीज की लिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है। और इसी तरह पाकिस्तान सिंगल विंडो इस प्रोसेस में है कि जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कंपनीज है उनको भी इंटीग्रेट कर लें ताकि तमाम जो सिस्टम है ट्रेड का वो उसको सीमलेसली वो प्रोसेस चल सके। इसमें हम मजीद देखेंगे कि अगर कोई ट्रेडर ये देखना चाहता है कि पाकिस्तान में जो कौन सी कमोडिटीज हैं जो बैंड हैं उनकी इंपोर्ट नहीं हो सकती, वो यहाँ पे उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। इसी तरह एक्सपोर्ट के ऊपर कौन सी आइटम्स हैं जो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। तो ये एक फ्री टू यूज और इजी टू यूज एक पोर्टल है जो ट्रेडर्स को उसकी ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए हमने पैसेंजर फैसिलिटेशन गाइड प्रोवाइड की है। उसको चूंकि इंटरेस्ट हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं आमतौर पर इन चीजों में होता है कि वो जब आ रहे हैं तो वो कितने मोबाइल ला सकते हैं, क्या चीजें ला सकते हैं, और यूज मोटर व्हीकल के ऊपर जैसे मैंने बताया। तो इसी तरह ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ इजीली अवेलेबल कर दी है। अब फॉर एग्जांपल जो बैगेज रूल्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुई है कि जो आउटगोइंग पैसेंजर्स है वो अपने साथ कितनी अमाउंट ऑफ मनी ले जा सकता है, वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। 5,000 की इंफॉर्मेशन यहाँ जो अपडेटेड हुई है वो हमने प्रोवाइड कर दी है। तो ये एक तरह से ये ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल अपडेटेड है और इसमें तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। कोई भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या लॉ प्रोसीजर अगर अपडेट होता है तो वो इसमें हम उसको वो बाउंड है वो हमसे शेयर करें और हम इसमें अपडेट कर देते हैं। इसमें लास्टली हम ये बताएं यहाँ पे एक मेंबर्स एरिया रखा गया है
वैसे ये पोर्टल हर एक इसको एक्सेस कर सकता है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आप ये कहेंगे क्लासिफाइड है या उसके लिए कोई मेंबरशिप रिक्वायर्ड है। मेंबर एरिया सिर्फ ये रखा गया है कि जो मेंबर बनते हैं उनको एक नोटिफिकेशन जाता है अगर कोई भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, कोई ट्रेड लॉज में चेंजेस आती है, किसी आइटम की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर चेंजेस आती है, तो वो इंफॉर्मेशन उसको एज अ नोटिफिकेशन फौरन चली जाएगी। तो इस मेंबर एरिया का मकसद ये है। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन जैसे ही कोई चेंजेस आती है वो उसको इधर से चले जाएंगे। दूसरा, इसमें लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं, उर्दू में इंफॉर्मेशन भी है और आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को मेन पेज से, और आप यहाँ पे उधर उस पे भी जा सकते हैं, आपको दोनों तरह से इंफॉर्मेशन इस पे अवेलेबल होगी। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो मैं हाजिर हूँ। तो दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच।